the screen visible to everybody? Yes. And we were looking for the third unit, which was nursing care of a neonate. Under that we had seen congenital malformations, and we had seen about the general care of newborn at birth. This is again, I had got one question from your batch only, that ऐसे हर किसी को नहीं करते हैं, और in every hospital it is not done. I have already told you all कि it is not mandatory for everybody to perform this, सबके में नहीं कर रहे हैं. But in some cases they do this way. In some cases you will see foil use नहीं कर रहे हैं, they are just using the cotton and using the blanket over it. But foil, it is observed that foil is helpful, better than the blanket. Then we had seen cleft lip and cleft palate. I have told you all this is an important topic which do come in exams. Any doubt you all can ask in this as well. Then we had seen anorectal malformations or imperforate anus, neonatal intestinal obstruction, esophageal atresia, tracheoesophageal fistula, TEF, or we had seen the parts also, 5 types it is in, and we have seen the management of it कि कैसे manage करना है. Then again an important topic we had seen meningocoele or meningomyelocele. In this difference was clear, everybody was clear about this. Spina bifida occulta है, then meningocele, myelomeningocele was there, and then difference I have told you all, meningocele or myelomeningocele में hydrocephalus we have seen. Now till here any doubt anybody is having? Till hydrocephalus anybody is having any doubt, you all can ask soon after the class. Now today we will see exemphalous major, minor and gastrochisis. It is not pronounced as gastroschisis, it is gastrochisis. S is silent in this. So कभी सुना है आपने exemphalous? Any idea? इसमें से मत पढ़ दो आप, but you just say exemphalous का meaning क्या है. Only the term exemphalous. Major minor we will see later, but exemphalous का भी आपने सुना है meaning? No ma'am. Exemphalous आप कहीं पे बुक में देखेंगे, डिफरेंट बुक में कहीं पर, और एल्स एनीवेयर एल्स इसको ओम्फेलोसील भी बोलते हैं. ओम्फेलोसील कभी पढ़ा है आपने? Anyhow, ओम्फेलोसील means any type of protrusion you can say. हर्निया तो सुना है ना आपने? Yes ma'am. So there's exemphalous you say, major minor और ओम्फेलोसील. ये कहाँ पे seeing the picture what you can see, कहाँ पे हो रहा है ये? Ma'am, abdomen. You can see no here. This is what it is, an abnormal protrusion, यानी कि कोई organ जो है वो protrude हो रहा है. That means protrusion अगर word आई है तो herniation से related है. So जब abdominal organs protrude होने लगते हैं बाहर abdominal wall से, तो इस defect को we call it ओम्फेलोसील और exemphalous. But gastrochisis नहीं है ये गैस्ट्रोकाइसिस में क्या हो रही है कि ऑर्गन्स तो है, बट अगेन द सेम ऑर्गन्स आल्सो मेम्ब्रेन जो एब्डोमिनल कंटेंट्स है ना उसको कवर करती है. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कंजेनाइटल यू कैन से malformations or an anomaly which is characterized by a group of other problems also. Coming on to the topic again, this is a defect in the formation of the anterior abdominal wall so that the internal viscera protrude out of the abdominal cavity. Anterior abdominal wall की formation की defect है जिसमें जो अंदर के जो organs है, viscera है, visceral layers है, they are doing what? They are protruding, they are coming out of the abdominal cavity. Now the herniated contents are covered by a sac containing or consisting of peritoneum and a jelly-like substance that gradually dries up to form an HR. It is not pronounced as SR, it is pronounced as HR. What does that mean? जब भी कोई भी स्किन डेड हो जाती है ना और वो अपने आप किसी बिकॉज ऑफ सम इंजरी, किसी को कोई इंजरी हो गई और अगर वहां पर लेयर फॉर्म हो गई, एवरीबडी माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, इंजरी होने के बाद में एक लेयर फॉर्म होती है, फिर वो शेड ऑफ हो जाती है, होती है
That same word is given SR. So over here also जो herniated content है वो एक sac के जैसे in the picture as you all can see एक sac के जैसे cover हो गई है जिसके अंदर jelly sort of, if you will touch and see on like this also, if you are seeing you can see it is a jelly sort of a substance. ये पहले dry हो जाता है उसके बाद ये गिर भी जाएगा. Then the cord hangs from the summit of the sac. Cord इसी में ही hanged up रहती है जहाँ पर sac is being connected. Then important things to remember when such a baby is delivered is not to cut the cord too close to the sac. Cord को कट नहीं करना है, ऐसे नहीं कट करना है कि वो बहुत ही ज़्यादा ये पाउच के दिस पाउच के पास में बहुत ही ज़्यादा पास में it is present. थोड़ा दूर से you are supposed to cut the cord once the delivery is been made. Content of the sac may include liver, spleen, small or large bowel, or as well as stomach. Sometimes there may be no sac and the bowel is lining exposed on the skin. पहले कभी कभी है अगर sac like this, I am showing this picture because it is much more clear. अगर ये sac present है तो ये टाइम में कभी कभी आप बिकॉज आई हैव टोल्ड व्हाट जो भी कंटेंट्स हैं एब्डोमिनल कंटेंट वो इधर आ गए हैं तो कंटेंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लिवर, इट कैन बी स्प्लीन, इट कैन बी स्मॉल और लार्ज बॉवल और स्टमक भी हो सकती है. कभी कभी ऐसे सैक बनी नहीं होती है लेकिन बावल आपको बाहर से ऐसी दिख रही होती है क्योंकि सैक नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है तो ऐसी बाहर से दिखेगी. So the defect is usually to one side of the umbilicus and it is tight. Sometimes it can be both covering both the sides. Sometimes it is covering only one side so that the bowel and its vascularity may gradually be compromised. The baby exposed bowel or the sac must be cleaned with sterile normal saline and then wrapped in a paraffin gauze to prevent drying or exposure. जो बावल अगर एक्सपोज्ड है उसमें कोई सैक नहीं है दैट पर्टिकुलर टाइम में उस सैक को देयर सपोज पर्टिकुलर पर्सनल whosoever is looking after the kid they should clean it with a normal sterile normal saline और फिर पैराफिन गॉज से उसको कवर करना है जिससे कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो, इन्फेक्शन होगी, ड्राइंग होने लगेगी बिकॉज ओपन है. बेबी शुड नॉट बी फेड, बेबी को फीड नहीं करना है. एंड अनेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ऑफ 6 फ्रेंच नंबर इट इज रिटन एनो नंबर कौन से नंबर का 6 फ्रेंच का शुड बी प्लेस्ड एंड एस्पिरेटेड. एस्पिरेट करना है कुछ भी अगर कंटेंट्स है अदर गैस्ट्रिक कंटेंट्स है वाई बिकॉज इट इज ओपन. IV फ्लूइड शुड बी स्टार्टेड 10% ऑफ डेक्सट्रोज दे देना है जिसमें 3 ml पर आवर पर kg पर आवर एक दिन में पहला दिन में आई मीन और N/5 dextrose saline which has been given 4 ml per kg per hour on the day 2 और उसके बाद पे भी. This all once we will see the procedures I will tell you N/5 dextrose saline क्या है, 10% dextrose 10D you might have seen. So this all I will show you all. Baby must be referred at the earliest to the pediatric surgery facility and gastroschisis cancer exposes bowel due to the lack of anterior abdominal wall. So पहले तो बेबी को you're supposed to refer कि जहाँ पर ये फैसिलिटी है दिस एम्फेलोस मेजर और माइनर की फैसिलिटी है करेक्ट करने के लिए रेक्टिफाई हो सकती है. और देन गैस्ट्रोकाइसिस अगर है अगर वो टाइम में इट शुड नॉट बी एक्सपोज्ड क्योंकि एक्सपोज होगा तो व्हाट विल हैपन. अगर एक्सपोज होगा तो व्हाट विल हैपन, एनी आइडिया. गैस्ट्रोक्राइसिस कब होगी, एब्डोमिनल वॉल की डिफेक्ट है ना यहाँ पर यू कैन सी इमेज में इट इज क्लियर. यस मैम. मैम इन्फेक्शन होगा तो हाँ वेरी गुड क्योंकि इंटेस्ट अब खुला है ये कवर नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगी इंटेस्टाइन और जो भी अदर कंटेंट्स हैं वो बाहर दिखने लगेंगे ना. जो बेली के साइड में जो एरिया होगा वहां से साइड में दिखने लगेगा. बिकॉज ऑफ what will happen that particular person or that particular kid may have some or the other issue or some or the other defect which will deteriorate the particular child's health. So what will be the difference between omphalocele and gastroschisis? Before seeing that we will see here only gastroschisis और omphalocele में क्या difference है. गैस्ट्रोकाइसिस में जो ओपनिंग होगी
आई टोल्ड यू ना, कोई से एक साइड में होगा या दोनों साइड में होगा। फॉर इंस्टेंस यू टेक लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड में अगर है, ये बेबी की लेफ्ट है, अगर लेफ्ट साइड में बेली बटन की ओपनिंग है, उसी ऊपर नहीं है लेकिन साइड में है, तो दैट इज गैस्ट्रोकाइसिस। लेकिन ओम्फिलोसील में क्या होगी, ओपनिंग जो है वो और ओवर यू कैन से इट कैन बी जो इंटेस्टाइन है विच इज नॉट बीन कवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटेस्टाइन आर नॉट कवर्ड। सेकेंड ऑफ ऑल अगर कवर्ड भी होगा तो उसमें जो ओपनिंग होगी दैट विल अलाउ कि जो इंटेस्टाइन है वो बाहर उसके थ्रू निकल सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप देखेंगे गैस्ट्रोकाइसिस में कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं, आप देखोगे राइट साइड में ओपनिंग विल बी देयर बट नॉट ओवर हियर। सर्वाइवल रेट अगर आप गैस्ट्रोकाइसिस में देखेंगे तो अगर सर्जरी हो गया है और फीडिंग बेबी प्रॉपरली कर रहे हैं, बावल को भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो गैस्ट्रोकाइसिस में अ पर्टिकुलर चाइल्ड कैन सर्वाइव। Whereas if you talk about omphalocele, इसमें भी survival rate is okay, but again depending upon the condition of that particular child. Okay. मैम डिफरेंस एक बार और बता दीजिए कि गैस्ट्रोकाइसिस में तो ओपनिंग लेफ्ट या राइट साइड में कहीं भी हो सकती है एक जगह। नहीं, कहीं नहीं, यूजुअली यू विल बी फाइंडिंग इन द राइट साइड, उसके ऊपर नहीं होगी। बेली के ऊपर ओपनिंग नहीं है, उसके आजू बाजू में है। यूजुअली आप जहाँ देखोगे बेबी को राइट साइड में देखेंगे, लेकिन उसके ऊपर ओपनिंग नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। मैम ओम्फोलोसील में ओपनिंग ऊपर होगी। हाँ, आई विल शो यू जब अभी इसके नेक्स्ट यूनिट में वी विल सी ना द अदर मीन्स व्हाट, इसके बाद का जो 5th यूनिट है इन दैट अगेन वी विल बी सीइंग दोनों ही देखो बर्थ डिफेक्ट है। इफ यू आर सीइंग गैस दिस थिंग ओम्फिलोसील और आप गैस्ट्रोकाइसिस भी देखेंगे, वो दोनों अब्डोमिनल बेली वॉल की बर्थ डिफेक्ट है। दिस यू ऑल गॉट, बर्थ डिफेक्ट तो है। गैस्ट्रोकाइसिस में क्या होती है, अगर ओपनिंग है तो वो जो आपकी बेली है उसका राइट साइड में यूजुअली आप देखोगे, लेकिन उसके बीच में नहीं है। ओम्फिलोसील के जैसा नहीं होता है, ठीक है। ओके मैम। देन दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, कभी कभी आप देखोगे कि क्लब फुट अगेन इट इज ट्रीटेबल, बट यू विल सी क्लब फुट के वजह से पता चल जाती है दैट दिस इज अ कंजेनाइटल अनोमली विच इज प्रेजेंट इन द बेबी। ये एक रेक्टिफाई हो सकती है, बट मेनी अ टाइम्स पीपल डू व्हाट, वो अबॉर्ट करते हैं। तो क्लब फुट की मेडिकल टर्म में यू ऑल्सो नोन एज टेलिप्स इक्यूनिस और यू कैन से टेलिप्स इक्यूनिवेरिस, दोनों टर्म एक ही है, मीनिंग एक ही है। बर्थ डिफेक्ट होती है ये, यू कैन सी नॉर्मल, एक ही बेबी को डिवीजन है 2 पार्ट में इन द इमेज। नॉर्मल बेबी की पैर सीधी है, वेरएज क्लब फुट वाली बेबी की और टेलिप्स इक्यूनिवेरिस वाली बेबी की इट इज लाइक दिस। ये बर्थ डिफेक्ट होती है, उसकी पैर थोड़ी सी जिसमें ट्विस्टेड होती है, और एल्स यू कैन से विच इज नॉट इन पोजिशन, जैसा पोजिशन होना चाहिए वैसा पोजिशन में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉज यू कैन से यू सबको इट इज नॉट वेरी वेल नोन कि व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, बट बर्थ बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉमन। Child may sometimes be born with shortening of the soft tissue of the flexor aspect of the leg and the medial side of the foot, so that the foot is pointing downward, which is known as equinus, and inwards, which is varus. तो equinivarus की meaning ये है, while his forefoot is adducted at the tarso-metatarsal joints. आप बस इतना ही याद रखो that क्या मीनिंग है डाउनवर्ड, मीन्स इफ द फुट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स दैट इज इक्विनस एंड इनवर्ड्स मीन्स वेरिस। तो इसमें दोनों चीजें होता है, इंक्लूड दोनों चीज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ बर्थ डिफेक्ट जहां पर एक या दोनों, आई एम नॉट सेइंग एक ही पैर में है, सम चिल्ड्रन में हैव ओनली 1 फीट इफेक्टेड जो कि डाउनवर्ड है और रोटेटेड इनवर्ड रहती है। इट इज डाउनवर्ड नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मुड़ा हुआ।
सो एक जो भी अगर एक अफेक्टेड है और एक सही है तो नेचुरली जब इनवर्ड और डाउनवर्ड है तो एक लेग से दूसरा लेग छोटा होगा। मेनी अ टाइम्स आप देखोगे कि दिस इज नॉट द ओनली डिफेक्ट, इसमें और भी प्रॉब्लम बेबी को हो सकते, कुछ और भी इश्यूज दे में है और एल्स फुट डिफॉर्मिटी भी रहेगी। इस ए टाइप के बेबी को उनको पेन होगी और अगर वॉकिंग करने तक रेक्टिफाई नहीं हुई तो उनको तब तक पेन होती है। ऑल्दो देयर आर measures to correct this initially, there is a method which is known as Ponseti method, जिसका मतलब होता है कि इम्प्रूवमेंट करते हैं कास्ट लगाकर। या दिस द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, कास्टिंग करते हैं एक एक वीक के इंटरवल पे। अगर जो अंदर के साइड में बेंडिंग है वो अगर रिमूव हो जाती है, अगर इम्प्रूव हो जाती है, देन फॉर द मेजर्स आर बीन टेकन वी विल सी लाइक दिस इन द सेकेंड पिक्चर विच यू कैन सी। पहला बेबी की क्लब फुट थी, ऐसी थी, देन दे हैव टाइड एंड हैव सीन फॉर अ वीक। अगर उन्होंने कास्टिंग करके देखा है देन इट इज लाइक लिटिल स्ट्रेट, देन मोर स्ट्रेटर देन कंपेरेटिवली जब बर्थ हुई थी तब से। So this may happen in one or both feet. Such feet are known as club feet. Most of them can be managed by early diagnosis and early proper manipulation. By the time they are 6 weeks, they require Ponseti, as I told. Ponseti techniques of manipulation and repeated cast by a person trained to do this. कोई भी नहीं कर सकते हैं. You and me, we can do. We can just assess the physicians कि ये करना क्या है। नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्निक विच इज पॉन्सिटी टेक्निक। इसमें क्या होती है, कोई इन्वेसिव सर्जरी नहीं होती, लेकिन कंजेनाइटल क्लब फुट इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट विच मीन्स अ टेक्निक जिसमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नेचुरली वी आर डूइंग अ मैनिपुलेटिव, इसीलिए नाम दिया है, मैनिपुलेटिव ट्रीटमेंट देती है जिसको डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अब फॉर इंस्टेंस ये है व्हाट यू कॉल, आपका बोन्स है, मसल्स है, टिश्यूज है, तो इनकी रिफॉर्मेशन इज बीन डन, मीन्स रिडक्शन थेरेपी वी डू, जिसमें ये सीधा हो जाएगा। और एल्स प्लास्टर कास्ट सर्जरी करते हैं हम, जिससे कि वो प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे। और दिस प्लास्टरिंग लाइक दिस एज आई टोल्ड यू ऑल, अगर सीवियरली अफेक्टेड है, बिकॉज अभी बेबी इज न्यूली बॉर्न, तो उसके बॉडी पार्ट्स एंड एवरीथिंग इज वेरी सॉफ्ट, सब सॉफ्ट होता है, तो आप एवरी वीक ये कास्ट को चेंज करते हैं और 2 मंथ्स तक मोस्टली, इफ इट इज अ सिवियर वन, 2 मंथ्स तक आप फुट को कास्ट करते हो जब तक करेक्ट नहीं हो जाए। कुछ वीक के बाद उसको स्प्लिंट में डालते हैं अगर वो नॉर्मल हो गई है फुट बेबी की तो। अंडरस्टूड? एंड everybody is not liable or eligible to do this, only the physician does it। अगर ये because this is not any sort of surgery जिससे बेबी को पेन होगा, this is a वेरी चीप थेरेपी, क्यों इसमें किसी का पैसा भी नहीं लग रहा एंड टाइम भी नहीं जा रही है, किसी बच्चे को पेन भी नहीं हो रही है, एंड मोस्टली यू विल सी इन एवरी हॉस्पिटल दिस इज नोन एज द 100% सक्सेसफुल सर्जरी इन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये एवरीबडी विल सपोर्ट। मेनी अ टाइम्स आई हैव टोल्ड ऑल, WHO के अलग गाइडलाइंस है, अमेरिकन एसोसिएशन के अलग हैं, पीडियाट्रिक उसके अलग हैं, लेकिन over here in this condition everybody will be following the same technique, mostly in club foot। Then such casts need to be revised every 1 or 2 weeks, and subsequent advice after the final cast has been completed depends on the chance of the foot bringing back to the original position। This is the same which I told, 1 या 2 वीक में चेंज करना रहना है, and then you are supposed to see the condition कैसी थी पहले। Nowadays तो they click pictures and keep whosoever the physician कि ये ऐसी थी, अब थोड़े 2 weeks के बाद में ऐसे हो गए, फिर उसके बाद में ऐसे हो गए, and then they compare simultaneously। If these are significant, the treating doctor advises braces to be worn as special shoes। एक shoes होती है sort of, उसको पहनने के लिए एडवाइस करते हैं। स्पेशल फुटवेयर भी देते हैं, इट शुड बी बॉर्न बाय द बेबी, अगर वो चलने लगी है तो और चलने लगे हैं तो। Regular follow-up visit for the physician or physiotherapist must be encouraged। Use of braces or strapping as advised by them must be ensured। This is only in case of bracing, strapping,
ये सब उन लोगों के लिए है, द वंस और द चिल्ड्रन दोज हु हैव स्टार्टेड वॉकिंग. Some children may even require surgical correction, which usually is done after 1 year of age. 1 साल के बाद करेक्टिव सर्जरी इज बीन डन, जिससे द पर्टिकुलर बेबी में, अगर इफ अ बेबी फॉर इंस्टेंस सर्जरी इज नॉट बीन डन फॉर एवरीबडी, अगर ये सारे मेजर्स से भी द बेबी इज नॉट और द इन्फेंट इज नॉट एट ऑल शोइंग एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो टाइम में आप सर्जरी कर देंगे. नाउ आप इसकी व्हाट यू कैन से वन सेकेंड, व्हाट ऑल बी द सिम्टम्स, आपको पता कैसे चलेगी दैट अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज हैविंग. जैसे कि ट्विस्टेड रहेगी, एज आई टोल्ड यू, ऑल डाउनवर्ड इनवर्ड रहेंगे. और जब ये आप फीट, द पर्टिकुलर बेबी का फीट अगर देखेंगे ना, आर्च जो रहती है, एवरीबडी इज हैविंग द आर्च फुट, तो उनकी आर्च इंक्रीज रहेगी, लेकिन हीट जो हील है वो इट विल बी फेसिंग डाउनवर्ड्स. इसलिए आप देख सकते हैं कॉजेस, एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट नोन. इडियोपैथिक विल बी देयर, मीन्स इट कैन बी जेनेटिक, it can be because of anything else or environmental also. Then there can be certain risk factors, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है. पेरेंट्स किसी को, जब भी पेरेंट्स वर बॉर्न, इट कैन बी एनी मदर और फादर, उनके टाइम में वैसा हुआ था. और एल्स कंजेनाइटल है, बाय बर्थ हो गया, हमको नहीं पता चला. और अगर कंजेनाइटल इट इज एसोसिएटेड विद अदर इश्यूज सच एज स्पाइना बाइफिडा, अगर उसकी वजह से है तो उसमें भी हो सकता है. हाउ आई टोल्ड यू, एनवायरमेंटल, जेनेटिक मीन्स घर वालों में हुआ है, एनवायरमेंटल आई टोल्ड यू कॉजेज में, क्योंकि मदर ने अगर स्मोकिंग किया है प्रेगनेंसी के टाइम में तो बेबी को रिस्क हो सकती है. Smoking can be in any way. She can be an active smoker, she can be a passive smoker. Active smoker कैसे होगी वो? How can somebody be an active smoker? Any idea anybody is having? एक्टिव तो उसको बोलेंगे जो खुद से कर रहा है, मतलब हाँ, स्मोक. very good, और पैसिव जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, तो अगर उसका वो जो धुआं है वो इनहेल very कर, good. पैसिव है. वेरी गुड उजाला. एक्टिव स्मोकिंग मतलब इफ समबडी इज इंडल्जिंग हर सेल्फ, मतलब वो खुद ही से करने की हैबिचुअल है, इसीलिए वो प्रेगनेंसी में भी कर रहे हैं. यू दे कांट से कि एक ही बार दो बार किया था. नो, इफ दे आर एक्टिवली स्मोकिंग दैट मीन्स एक्टिव स्मोकर. पैसिव स्मोकर वी आर लाइक कि वी डोंट स्मोक बट हम एक्टिवली वहाँ प्रेजेंट हैं, जो स्मोक कर रहे हैं उसके वजह से भी हमें हो गया है. अदर रिस्क फैक्टर्स कैन बी, प्रॉपर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनी है, या जितनी बननी थी उसको नाम क्या है, अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो, मैम अगर ऑलिगोहाइड्रोम. वेरी गुड, ओलिगोहाइड्रोमनियाज. इसमें पॉलीहाइड्रोमनियाज नहीं होती है, ओलिगोहाइड्रोमनियाज इज कॉमन. इफ ओलिगोहाइड्रोमनियाज इज देयर, तो अगर बहुत कम एमनियोटिक फ्लूइड है मदर के वूम में, जिसके भी रिस्क हो सकती है क्लब फुट. नॉट ओनली क्लब फुट, और भी कंडीशन हो सकती है. There can be some this thing, complications also because of club foot. इसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक कि बेबी खड़े होना बैठना नहीं सीख जाते, चलना नहीं सीख जाते हैं, तब तक कोई इश्यू नहीं है. बिकॉज जब चलेंगे तभी मूवमेंट पता चलेगी. तो जो अफेक्टेड एरिया है ना, वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी विल बी लेस, लेंथ छोटी रहेगी. एक एक बड़ी है, अफेक्टेड वाली छोटी है. अगर दे विल बी हैविंग, इफ दे विल बी वेयरिंग शूज, अफेक्टिव शूज, थोड़ा सा छोटा पहनना पड़ेगा, वेर एज दूसरा वाला बड़ा पहनना पड़ेगा. अगेन खरीदने के लिए तो यू कैन से ना एक स्पेयर का दे दो, एक स्पेयर का दे दो. दे विल बी बाइंग, पेरेंट्स विल बी बाइंग 2 पेयर्स, एक 4 नंबर, एक फॉर इंस्टेंस एक 1 नंबर, एक 2 नंबर. तो ऐसा दे विल हैव टू सी. So how they can prevent a particular person, especially mother, कैसे prevent कर सकते हैं? is if it is congenital ठीक है, genetic maybe somebody is having. If it is environmental they can definitely prevent, like smoking नहीं करनी है, और it can be both active और passive. अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है, ड्रग्स कंजम्पशन नहीं करना है. एनी ड्रग्स, ड्रग्स डजंट मीन कि
नॉट ड्रग्स, वन ड्रग्स नहीं आई है, मेडिकेशंस हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में ऑल द मेडिकेशंस आर नॉट टू बी टेकन, कोई सा भी नहीं ले लेते हैं। इफ नॉर्मली नोसिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है, लाइक अ पर्सन लाइक मी, इफ आई एम वेरी प्रोन टू नोसिया, सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में आई फील नोजेटिक। सो इफ अ पर्सन लाइक मी कंसीव्स, उसको शी शुड मेक श्योर कि वो कोई सा भी मेडिकेशन नहीं ले। बाय सेइंग अवॉइड ड्रग्स, ड्रग्स डजंट मीन दोस टाइप ऑफ ड्रग्स, इट इज लाइक मेडिकेशंस ऑफ एनी सॉर्ट। देन नेक्स्ट इज obstructive micturition in newborn period or infancy period। obstructive का मीनिंग क्या होती है, एनी आइडिया? मैम ऑब्स्ट्रक्ट, obstructive micturition, ब्लॉकेज। obstructive means block, micturition कभी सुना है? मैम अर्ज टू यूरिनेट। हाँ, यू कैन से, बट मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? Urge you can say, or proper urination also you can say। जब भी ब्लैडर खाली हो रही है, in that way you can say micturition, or else you can even say urination। सो बेबी पासिस, अगर मिक्चुरेशन, हाँ, पासिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो इट कैन बी इन न्यूनेटल पीरियड, इट कैन बी इन इन्फेंसी पीरियड। बेबी passes urine in a poor stream, often straining to pass few drops हो रही है, or else dribbling you can say, few drops, or you can say dribbling। अगर बेबी इज नॉट पासिंग प्रॉपरली इन द गुड स्ट्रीम, नॉट प्रॉपर स्ट्रीम में, पुअर स्ट्रीम में पास कर रही है, और उसको पास करने में भी स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, दैट देयर मे बी एपिसोड्स ऑफ repeated urinary tract infection with fever, found swelling and visible turbid urine। हर बार ऐसा हो सकता है कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है, जिस कैन बी अगेन accompanied by fever, foul smelling, फाल स्मेल हो रहा है, फीवर हो रहा है, टब और विजिबली टर्बिड यूरिन। टर्बिड मतलब क्या होती है? टर्बिड यूरिन, व्हेन आई से टर्बिड यूरिन मतलब क्या होती, टर्बिड मतलब क्या होती है? जब भी यूरिन में कोई कलर नहीं है, क्लियरली कोई, यू कैन कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर यूरिन, वो टाइम में टर्बिड यूरिन होती है, और उस टाइम में आप बोल सकते हो कि यूटीआई हुआ ही है उस इंसान को। if the urine is having no characteristics, or you can say cloudy ऐसा urine होता है। I don't have the image, otherwise I would have shown you all। The child may be thriving poorly and the abdomen may appear distended due to partially full or thick walled bladder and often ballooned kidneys। अगर चाइल्ड को ये सब इशू है, ऑब्स्ट्रक्टिव मिक्चुरेशन, अब डेफिनेटली उसी, अगर आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, दैट व्हाट पर्टिकुलर पर्सन में हैव एब्डोमेन विल बी डिस्टेंडेड, क्योंकि जो ब्लैडर है वो पार्शियली और फुल्ली फुल हो गया है, ब्लैडर की वॉल थिक हो गई है, और which is affecting the kidney as well। The cause of the obstruction in male babies is usually a birth defect where valves are present in the posterior urethra that obstruct the antegrade flow of the urine। जो valve है वो posteriorly present है in the males, उसमें because of that birth defect है, because of that obstruction हो रही है। Baby may be referred early to a pediatric surgical facility as the kidneys get increasingly damaged with each episodes of urinary tract infection। जो baby है, the particular, it can be male female, they should be referred to the pediatric surgical facilities, क्योंकि किडनी पे repeatedly डैमेज हो रही है, जैसे जैसे बार बार यूटीआई हो रहा है वैसे वैसे द किडनी इज अफेक्टेड। डायग्नोसिस एस्टैब्लिश्ड ऑन डूइंग रेडियोलॉजिकल स्टडीज, सॉरी, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जैसे मिक्चुरेशन, सिस्टोयूरेथ्रोग्राम और यूरेथ्रोस्कोपी, ये सारा कुछ करना है, उसके वजह में डायग्नोसिस उसे पता चल सकती है कि व्हाट इज द एक्चुअल इफेक्ट। ट्रीटमेंट में ऑल्सो इन्वॉल्व वाल्व एब्लेशन यूजिंग फल्क्यूरेशन। अभी दिस अगेन दिस टॉपिक वी विल बी सीइंग, तब आई विल टेल यू।
Some babies may require temporary urinary diversion and then valve ablation. अब it is a surgery जहाँ पर if the valve is small, उसको dilate कर कर बड़ा कर देते हैं. All of this require a dedicated setup to handle these problems. Then next again, hypospadiasis is there and एपिस्पेडियासिस इज देयर. हाइपोस्पेडियास किसी ने सुना है? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम होगी. हाइपोस्पेडियास सुना है? मेड सर्च में पढ़ा होगा आपने. यस मैम. हाइपोस्पेडियास क्या होती है? मैम इसमें ये होता है कि मेल जो मेल का डिसऑर्डर होता है, इसमें जो पेनिस में ओपनिंग मतलब उसकी मेन पोजीशन पे ना होके कहीं और होती है. वेरी गुड, वेरी गुड. जो सेंटर में नहीं होके, इन अ वे यू कैन से द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज नॉट एट द सेंटर. अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं और ही हो गई है, या तो डोर्सल एरिया में हो गई है या वेंट्रल एरिया में हो गई, बट वो सेंटर में नहीं है. विच इज व्हाट, किसका मीनिंग है ये? हाइपोस्पेडियास का. एपिस्पेडियास क्या क्या है? कुछ आइडिया है एपिस्पेडियास? यस और नो से. मैम इसमें भी ओपनिंग का ही होता है कि मतलब जो ओपनिंग होती है वो एबनॉर्मल पोजीशन पे होती है. बोथ आर सेम, बट इफ देन वी विल से कि एपिस्पेडियास और हाइपोस्पेडियास में डिफरेंस, तब क्या बोलेंगे आप? मैम एपिस्पेडियस में होगा कि डॉर्सल सरफेस पर होगी ओपनिंग. अब नॉर्मल एरिया में ओपनिंग हो गई है हाइपोस्पेडियास में, कोई फिक्स्ड जगह में नहीं है. whereas if you talk about एपिस्पेडियास, ये भी एक यूरेथ्रल की ओपनिंग डिफेक्ट है, लेकिन जो यूरेथ्रा है वो फुल्ली इसमें डेवलप नहीं होती है. ठीक है. और यूरिन जो है, if somebody is passing the urine, if that particular male kid is passing the urine, वो abnormal एरिया से पास हो जाएगी. ठीक है. अब इसका रीजन इज एपिस्पेडियास में क्या हो रही है कि जो बोन है पर्टिकुलर बेबी की, दैट प्यूबिक और प्यूबिक बोन विच वी कॉल, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, इसीलिए एपिस्पेडियास हो गई है. Again, position of the urethra may be abnormal due to developmental defects. When located on the ventral aspect, it is called epispadiasis, whereas abnormal opening of the dorsal surface of the phallus is called epispadias. Again, अगर कहीं और ओपनिंग हो गई है इधर साइड, टिप पे नहीं है, हाइपोस्पेडियास, लेकिन अगर डॉर्सल सरफेस से अगर ओपनिंग हो गई है तो उसको एपिस्पेडियास कहते हैं. अगेन आई विल रिपीट कि जो प्यूबिक एरिया की बोन होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाती, इसीलिए एपिस्पेडियासिस से. In this extreme form, the entire urethra and the anterior bladder wall may be incompletely closed and display on the surface of the lower abdomen. Such a defect is also known as extrophy epispadiasis complex. The ureter open on the posterior open bladder wall and keep leaking the urine. यूरिन लीक होती रहती है. एक्स्ट्रोफी ब्लैडर, कभी सुना है ये एक्स्ट्रोफी ब्लैडर? और एल्स आपने सुना होगा एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर. फीटस के बाहर डेवलप हो जाती है, फीटस के बाहर ब्लैडर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है. ये बहुत ही ज़्यादा रेयर डिफेक्ट यू विल बी सीइंग. तो जो ब्लैडर होती है, दे कांट स्टोर पर्टिकुलर बेबी का यूरिन, उनको जिसकी वजह से लीकिंग होती है, जिसके वजह से द पर्टिकुलर ब्लैडर कॉजेज सिवियरिटी इन द बेबी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ब्लैडर एक्स्ट्रोफी है ये डेवलपमेंटल अनोमली में आती है, विच विल बी अकरिंग कब होगी? जब मदर कंसीव कर लेती है उसके 5 वीक के बाद पे, 5 और 6 वीक के बाद में. ठीक है. नेक्स्ट, now this is the difference which I am showing: hypospadias, epispadias or extrophy of bladder. All these difference require surgical correction. Often it is complex or else in multi stages, एक बार में नहीं हो पाती है. Referral is important. Next is blue baby syndrome or you say cyanotic congenital heart disease. इसमें आती है congenital heart defect or diseases. It refers to the defect in the structure of the heart which is present since birth.
सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट है ये, अगेन इट इज आस्क्ड, इट इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम, या फिर आप बोलोगे साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज. इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डिफेक्ट, द सिम्टम्स एंड द टाइप में वेरी फ्रॉम ईच अदर, एक जैसे नहीं होते हैं. कॉज इज अननोन, then often associated with maternal infections during pregnancies, genetic defects जैसे कि डाउन सिंड्रोम. Other it is also associated with other malformation which is known as vectoral association. उसका आगे देखो, VACTERL association is V stands for vertebral anomalies, A stands for anal malformations, C stands for cardiac abnormalities. Again vectoral में T stands for tracheoesophageal fistula, E stands for esophageal atresia, R stands for renal anomalies and L stands for limb anomalies. ये vectoral is important. This is asked in exam. क्या करके पूछते हैं, other malformations which are also associated with cyanotic congenital heart defect or disease is also known as vectoral association. So they will be asking vectoral का full form बताओ. So this is the full form. Then symptoms of congenital heart disease may vary from none to severe depending upon the type of birth defect. जिसमें common symptoms कौन कौन से हो सकते हैं, rapid breathing, tiredness on feeding, खाते खाते ही थक गए, ब्रीदिंग बहुत फास्ट है, साइनोस्ट है बेबी का बॉडी, लिप्स और नेल्स सब ब्लूइश डिस्कलरेशन है, वेट गेन नहीं हो रही है और हो रही है तो इट इज वेरी स्लोली, cyanotic spells where the baby becomes deeply blue, which I have told you, टेस्ट spells पढ़ाया था, that is again in this. Then congenital heart defects are broadly divided into cyanotic और acyanotic. तो दो टाइप के होते हैं, cyanotic congenital heart diseases and acyanotic. Acyanotic, A means absence, cyanotic means cyanosis. जिसमें cyanosis नहीं प्रेजेंट है वो acyanotic है, जैसे ASD, VSD, atrial septal defect and ventricular septal defect. साइनोटिक में जहां पर साइनोसिस है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है, जैसे TOF, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, जो अभी हमने पीछे पढ़ी. मोस्ट कॉमन हार्ट डिफेक्ट्स इंक्लूड ventricular septal defect, which is a hole in the wall between the right and the left ventricle. राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होल है, वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल्स, सेप्टल मीन्स सेप्टम, डिफेक्ट मीन्स डिफेक्ट. तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मीन्स दो वेंट्रिकल विच इज राइट ऑन द लेफ्ट, उनके बीच में अगर होल है तो विच इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. सिमिलरली ASD इट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दो एट्रिया के बीच में अगर कोई होल है तो वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट or fallet in the which the baby appears cyanosed and they may have cyanotic spells on crying. रोने से बिल्कुल ब्लू बढ़ जाते हैं बेबी. Other heart defects which include complex conditions such as TGA, pulmonary atresia and tricuspid atresia. There are other complex conditions apart from these, ASD, VSD, TOF, इनके अलावा भी अलग होते हैं. तो ये सारी चीजें हैं which can be included, which are other में है TGA, then pulmonary atresia, then tricuspid atresia, these all are present. Some of the heart defects are life threatening if not diagnosed. You all are listening? Yes ma'am. Getting? Yes ma'am. TGA फिर क्यों नहीं पूछा, TGA पता है आपको? फुल फॉर्म भी नहीं पूछा, सिंपली नॉडिंग. ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, तीन चीजें, ये सारा चीज याद रखना, VSD, ASD, TOF और उसके पहले वेक्टरल, देन एसाइनोटिक, साइनोटिक और TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज. ये भी बर्थ डिफेक्ट होती है कंजेनाइटल बेबीज के बीच में, जहां पर जो दो आर्टरी हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ को ले जा रही हैं वो दोनों कनेक्टेड नहीं रहती हैं, दैट इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज. ट्रांसपोजिशन वैसे आधा आधा करके याद कर दो. देन पल्मोनरी एट्रेसिया, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया. सम ऑफ द हार्ट डिफेक्ट्स आर लाइफ थ्रेटनिंग. अगर डायग्नोस कुछ भी डायग्नोस नहीं हो रहा है, दैट इज नेचुरली अ हार्ट, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. अगर ट्रीट हो जाता है देन द चाइल्ड में एंड अप विद अ प्रॉपर this thing, proper treatment, and the treatment can be done and prevention also can be taken. Then a health worker should suspect the presence of a heart defect if any of the above symptoms are present. ये जो symptoms है ना, ये सब अगर present है तो हमें detect करना है.
one examination one can find a rapid heart rate and presence of a murmur on auscultation of the heart. जब ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ये सब चीजें चेक करना है. पल्स ऑक्सीमेट्री से पल्स ऑक्सी चेक करना है, फूड परमानेंटली लगाना है, साइनोसिस अगर है तो उसको इम्प्रूव करना है ऑक्सीजन लगाकर. और इफ साइनोसिस इज परसिस्टेंटली प्रेजेंट तो उसका मतलब है साइनोटिक हार्ट डिजीज है. In such baby should be referred to the pediatrician for further evaluation and treatment. रेफर कर देना है. न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट्स में प्रेजेंट विथ फेलियर टू थ्राइव. ऐसे बच्चे फेलियर टू थ्राइव, पुअर फीडिंग, रेकरेंट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और साइनोसिस. ये बेबी के फेस एंड लिप्स यू देखो साइनोस्ड and the baby is not looking also well groomed. Auscultation over the precordium will often elicit a murmur. Conclusive diagnosis requires. फाइनल डायग्नोसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी एंड समटाइम्स मोर सोफिस्टिकेटेड टेस्ट. और भी टेस्ट कर सकते हैं जो हर जगह पे नहीं होते हैं. एनी डाउट यू ऑल कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास से वी विल बी सीइंग a different topic which is in a different unit, and these all topics again as I told you ये फिर से लेंगे उसमें. Since this was in just in the topic malformations, so just I have to brief you all with the malformations कि कौन से malformations होते हैं. ये सब malformations हैं, namely ये सब थे हाइड्रोसिफिलिस, एक्जेम्फिलोसील, टेलिप्सिक यूनिवेरिस, हाइपोस्पेडियासिस, एपिस्पेडियासिस, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, ब्लू बेबी सिंड्रोम और साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस उसमें वेक्टरल है. Then blue baby under में है cyanotic acyanotic heart defects. This all we have seen till now. These all again as I told you all फिर से we will be taking, I will be taking. Thank you.